So hello student, today we are going to start with potential energy and electric potential, right? So potential energy, as you people know, it is represented by U. If we talk about the potential energy, it is a scalar quantity. Units can be joule or calories or erg in CGS system, right? So SI unit will be right now joule, calories. Okay, if you want to convert calories into joules, so we already know that 1 calorie is equals to 4.18 joule, or we can take approximately 4.2 joules, right? If we talk about definition, so it is work done by an external force in bringing a charge from infinity to a region of electric field E, right? So let's suppose there is this region where there is this electric field, right? Electric field can be in any fashion, and there is this charge, let's suppose Q1. So it is right now at infinity and we are bringing it at a distance r, right? So whatever is the net work done by external force is known as our potential energy. So let's suppose if we see force, electrostatic force, it is simply Q into E, right? बट इफ वी सी एफ एक्सटर्नल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिशन में लग रहा है, इट्स गोइंग टू बी माइनस ऑफ क्यू ई, राइट? नाउ इफ वी वांट टू सी वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, इट्स गोइंग टू बी क्यू एक्सटर्नल इनटू डी आर वेक्टर. सो डी आर वेक्टर में सब कुछ आ गया, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, राइट? सो वी आर टेकिंग दिस रेडियल वेक्टर. This is going to be from infinite to distance r. So this is what external work done, and external work done ही क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियली ये कहाँ पे था? इन्फिनिटी पे था, फाइनली आर पे लेके आ गए. तो ये डेल्टा यू मतलब क्या हो गया? यू आर जो कि फाइनल है, यू इन्फिनिटी जो कि इनिशियल है, राइट, इज इक्वल्स टू जो हमने ये लिखा है वही वाला, राइट? अभी यू इन्फिनिटी को हम क्या लेते? ज़ीरो रहते, एज बिकॉज क्योंकि इफ़ वी सी ओवर हियर देर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एट विच पॉइंट? एट दिस पॉइंट, right? If there is no significance of electric field, there won't be any force due to this charge, due to this electric field. So अगर कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है तो वहाँ पे हम रेफरेंस क्या ले सकते हैं? ज़ीरो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल like electric potentials are relative value, not absolute values. So it depends on the initial position. ठीक है, इनिशियल पोजीशन को हमने क्या माना है उस पर हमारा फाइनल डिपेंड करेगा, जबकि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, राइट? सो यू आर, इफ वी कंसिडर यू इन्फिनिटी एज ज़ीरो, सो यू आर इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ integration of q e dot dr and integration from infinity to r, right? So you can either remember this or you can find by this method as well, right? So also many times we won't able to find exact value of potential energy or potential electric potential. So
what we are going to find, we are going to find the change, right? So ये हम आगे देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि इनफाइनाइट रॉड हो गया, इनफाइनाइट शीट हो गया. So there we are going to find potential difference, right? So now we are going to see potential energy due to point charge. Potential energy due to a point charge. So let's suppose we take one point charge over here, which is q1, and if we see electric field, it's going to be radially outward, right? Something like this. And if we see at distance r from this charge, let's suppose we take point P. There is one charge at infinite distance. Let's suppose we take this q2, right? If we see potential energy, electric field is going to be k q1 by r square r cap, right? If we going to see dr vector, so dr vector कैसे रहेगा, वो हमेशा ही, अगर ये r है तो हम ऐसे भी ले सकते, ये हो जाएगा dr वेक्टर, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, आर कैप में ही होगी, राइट? ऐसे ही डायरेक्शन आएगी इसकी भी. सो के q1 r square, so this is r cap and dr r cap. If we going to integrate, इनिशियली ये कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, राइट? फाइनली हम इसको r पे लेके आ गए, आगे माइनस आएगा और यही u r होगा, राइट? कुछ मिस हो रहा है क्या? अच्छा, इनटू चार्ज रह गया. फील्ड से हमें चार्ज को मल्टीप्लाई भी करना था, तो यहाँ पे q2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फाइनली ये आएगा अपना कि q1 q2 बाय आर स्क्वायर डी आर. आर कैप और आर कैप 1 हो जाएगा, राइट? इन्फिनिटी से r और आगे माइनस, इट्स गोइंग टू बी यू आर. Solving this, we are going to get k q1 q2 by minus r, and this minus is going to get but plus. Finally we are going to get q1 q2 upon r. So this is going to be potential energy between both the charges, right? So now we're going to see potential energy of a system. So let's suppose मेरे पास q1 q2 एंड q3 तीन चार्ज है. ये डिस्टेंस हो गया अपना r13, ये हो गया r23, ये हो गया r12, राइट? अगर हमें पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है. लेट्स सपोज कोई भी एक चार्ज को पकड़ लो, जैसे कि मैं पकड़ रहा हूँ अभी के लिए q1 को. तो q1 तो ऑलरेडी यहीं पे था, ठीक है? q1 को मतलब पहले इनफाइनाइट से अगर मैं इस पॉइंट पर लेके आऊँ तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है? तो हमने वर्क डन क्या किया, 0 किया, राइट? अगर अभी q1 ऑलरेडी है और मैं q2 को लेके आऊँ, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड q1 के कारण तो होगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ q1 एंड q2, नेट पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी k q1 q2 अपॉन upon r12, right? Plus if we talk about q3, now there are two charges, right? So there will be potential energy due to q1 and q2 as well. So k q1 q3 upon r13 plus k q2 q3
R23. सो दिस इज़ गोइंग टू बी नेट पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर यहाँ पे हम देखिए U टोटल अपना आ कैसे रहा है, एक तो U12 के कारण, फिर प्लस U23 के कारण और U31 के कारण, राइट. या फिर इसी को हम U13 भी लिख सकते हैं. अच्छा, अभी कोई भी हम देखें जैसे कि U12 या U21 देखें, दोनों कितना आएगा KQ1 Q2 अपॉन R12, राइट. ये तो स्केलर क्वांटिटी है. अपना जो फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी था, तो डायरेक्शन के कारण फ़र्क पड़ जाता था, एक नेगेटिव आगे आ जाता था. लेकिन ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों ही सेम हो जाएगा, राइट. सो अगर मैं ये देखूँ कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मेरे 3 है, राइट, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स कितनी बनेगी ये एनर्जी की, ये बनेगी 3C2 विच इज़ 3 × 2/2 विच इज़ गोइंग टू गिव अस 3, राइट. सो अगर n पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ n पार्टिकल्स है अगर, तो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पेयर्स कितनी बनेगी, ये बनेगी NC2 विच इज़ सिंपली n × n-1/2, राइट. सो लेट सपोज सेम एक दूसरा अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, राइट. लेट सपोज ये अपना एक क्यूब है, और क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे हमने एक चार्ज क्यू रखा है, और क्योंकि क्यूब है तो ये सारे के सारे जो एज के डिस्टेंस है वो a हो जाएंगे, राइट. तो पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा. आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट 2 मिनट लेके ट्राई कर सकते हो, राइट. तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. अच्छा, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देखेंगे, क्योंकि 8 वो अपने कॉर्नर्स है, 8 वर्टेक्स है, तो ये 8 × 7/2 इज़ गोइंग टू गिव अस 28 नंबर ऑफ़ पेयर्स. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. कुछ तो हम निकाल लेंगे लेकिन कुछ तो रह जाएंगे. सो बेटर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें U12, U23 एंड U13 आया, राइट. अगर मैं ऊपर एक दूसरा U टोटल लिखूँ जो कि है U21, इसका उल्टा, प्लस U32 और प्लस U31, ये हर एक का रेसिप्रोकल हो गया, राइट. अगर ये दोनों U टोटल कैसे हुए, क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, जो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया ऑलरेडी, ये और ये सेम है. अगर दोनों को ही हम ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2U टोटल, और यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे मैं सॉर्ट करके लूँगा. जैसे कि अगर हम U12 एक ले रहे हैं तो दूसरा हम लेंगे U12 प्लस U13 प्लस, अगर हम देखें तो एक हम लेंगे U23 और U21, तो U21 प्लस U23, अगर कुछ दिख रहा हो आपको. लास्ट में हम लेंगे U31 प्लस U32, और ये टोटल ये ट्वाइस है, उसको हम यहाँ पे 2 से मतलब डिवाइड कर देंगे. तो अगर यहाँ पे आपको दिखा हो तो ये क्या है, ये 1 चार्ज के कारण 2 और 3 का दोनों ही है. यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो ये 2 चार्ज के कारण 3 पे भी है और 1 पे भी है. सेम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 चार्ज के कारण 1 पे भी है और 2 पे भी है. ये ज़्यादा इजी हो जाएगा. कैसे, अगर यहाँ पे हम देखें कैलकुलेशन, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे मुझे टोटल U1 निकालना है तो ये हो जाएगा U12 प्लस U13 प्लस U14, ऐसे कितने किधर तक U18 तक
हम निकालेंगे, राइट। तो U1 अगर पहले हम निकाले, ये आ जाएगा अपना, U12 की बात करें तो KQ² राइट। U14 की बात करें अगर तो ये भी हो जाएगा KQ² राइट। और ये Q1 इधर है और Q6 इधर है, तो यहाँ पे अगर देखें तो KQ² अगेन A²। ये तीनों Q1 से H के डिस्टेंस पे है, इसलिए ऐसा आएगा। सेम अगर हम ये देखें तो ये फेस डायगोनल एक हो गया, ये भी एक फेस डायगोनल हो गया और ये भी एक फेस डायगोनल हो गया। ये नीचे वाला फेस के ऊपर, ये सामने वाले फेस के साइड, और ये एडजेसेंट फेस हो गया अपना। तो यहाँ पे हम लिख सकते थ्राइस KQ²/√2a। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये A² लिखे है, वो हटा देना, राइट। √2 टाइम्स हो गए, ठीक है। तो 3 ये आ गए, 3 ये आ गए, टोटल हमारे 7 बनने चाहिए, राइट। U12 से लेके U18 तक, लास्ट अपना बचा U18। तो ये Q1 और ये Q8, ये अगर देखें तो ये क्या है, बॉडी डायगोनल है, राइट। बॉडी डायगोनल एक ही होता है एक क्यूब के अंदर, मतलब एक वर्टेक्स से एक ही बनेगा, दूसरे वर्टेक्स से वैसे तो टोटल 4 बन सकते हैं, फाइन, या फिर ज़्यादा बन सकते हैं, वो छोड़ते हैं अभी। ये हो जाएगा KQ²/√3a, राइट। ये हो गया अपना U18। तो इसे फाइनली सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है, 3KQ² प्लस 3KQ²/√2a प्लस KQ²/√3a। तो ये टोटल U1 आ गया। अभी जैसा ही U1 है वैसे ही तो दूसरे 8 के 8 पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। सेम अगर मैं Q2 पे देखूँ तो 3 अपने H पे हो जाएंगे, एक Q1 हो गया, एक Q5 हो गया और तीसरा Q3 हो गया। 3 उसके फेस डायगोनल पे हो गए, तो Q3 और Q6, Q3 और अपना Q8 जो कि ये वाले फेस पे आ जाएगा, और Q2 था, Q3 नहीं था, Q2 Q6 Q2 Q8 और Q2 और Q4 जो कि ये वाले फेस पे है, राइट। Q2 और Q7 क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉडी डायगोनल बन जाएंगे। तो सभी के सेम ऐसे ही आएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ U2 भी सेम एज U1, सारे के सारे U3 भी ऐसे ही सेम। तो U टोटल की वैल्यू कितनी आ रही थी, समेशन UI अपना हो जाएगा 1 से लेके यहाँ पे N तक, जो कि है 8 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3KQ²/a प्लस 3KQ²/√2a प्लस KQ²/√3a। ये फाइनल आंसर है। सो U टोटल भी अपना हो गया। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इसे हम पोटेंशियल तो नहीं, वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। सो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये सिंपली, इसे हम पहले तो V से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है U जो कि पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय चार्ज। सो डेफिनेशन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, या फिर इधर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो इधर वर्क डन लिख देते हैं, वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। सो यहाँ पे अगर हम देखें रिलेशन की बात करें तो u की वैल्यू क्या थी, -(q e) .dr
इन्फिनिटी से आर। यू को ही हम क्यू वी भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। और फाइनली यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से आर। राइट, काफ़ी सिंपल है। अच्छा, इसके कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये एक मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं और ये हम आगे भी यूज़ करेंगे एक दो जगह पे। राइट, काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अगर मैं v की वैल्यू आपको दूँ एक्स स्क्वायर वाई जेड सपोज ऐसा, और हमें कोऑर्डिनेट्स दिए 1,1,3। तो पहले तो अगर इस पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1 × 1 × 3 विच इज़ गोइंग टू बी 3 वोल्ट्स। अच्छा, इसका यूनिट वोल्ट्स में आता है या फिर जूल पर कूलम। राइट, तो 3 वोल्ट्स हो गया। अगर इसी पे हमें फील्ड निकालनी हो तो ये अपना रिलेशन है। यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई। अच्छा, ये इधर आर कैप आ जाएगा। लेट सपोज ये तो अपना सर्कुलर कोऑर्डिनेट में हो गया। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ई हो जाएगा माइनस, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, डेल्टा। राइट, डेल्टा तो नहीं है, ये डेल कहते हैं इसे। और यहाँ पे नीचे डेल आर और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। राइट, यहाँ पे ये मैं इक्वेशन से ही आपको ज़्यादा इजीली समझा देता हूँ। तो लेट सपोज ये है, हमें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो डेल है, डेल बाय डेल आर, ये होता है डी पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप। अगर यहाँ पे v है तो ये इधर v आ जाएगा प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल v बाय डेल z के कैप। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा आगे माइनस भी आएगा, राइट, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ये अपना फंक्शन है v एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो इसको अगर हम पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ एक्स को ही डिफरेंशिएट करना है ये फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में। तो ये हमें देगा 2x वाई जेड को कांस्टेंट मान के छोड़ देना है। अच्छा, माइनस मैं बाहर कॉमन ही ले रहा हूँ, ये अपना आएगा e, इधर आएगा आई कैप। अच्छा, प्लस अगर पार्शियली हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, एक्स स्क्वायर जेड आएगा, राइट, ये हो गया जे कैप। और लास्ट वाला आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर वाई के कैप। सो ये फील्ड की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको अगर इंटीग्रेट भी करोगे और ये इंटीग्रेट करके ये निकालना है तो हम पार्शियली इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, राइट, लेकिन हाँ हमें फंक्शन मालूम होना चाहिए जो कि ऐसा है। अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करें जो कि 1,1,3 है, तो ये हमें देगा माइनस ऑफ 2 × 3 विच इज 6 आई कैप प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 तो 3 जे कैप प्लस लास्ट वाला 1 का स्क्वायर इंटू 1 सो 1 के कैप, राइट। सो ये आएगा, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स है। अगर मैं यहाँ से r डिस्टेंस दूर देखूँ तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है जो कि क्यू बाय आर स्क्वायर है। चार्ज हम क्यू ले रहे हैं,
इधर आर कैप आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। डी आर वैक्टर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डी आर जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, आर कैप उसकी डायरेक्शन है। अगर डेल्टा वी देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इनिशियली इन्फिनिटी पे फाइनली आर पे। सो ये आ जाएगा अपना वी आर, और वी इन्फिनिटी को हम रिस्पेक्ट में लेके ज़ीरो लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से आर के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे डी आर बचेगा। फाइनली वी आर की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय आर। फाइन, ये आप याद रख सकते हो, रखना ही पड़ेगा वैसे तो। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, लेट सपोज ये अपनी ये अपनी रिंग है अगर, और इसके अगर सेंटर पे हमें निकालनी है, राइट, प्लस लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं ये छोटा सा पार्टिकल लूँ जिसकी लेंथ डी एक्स है, तो डी एक्स के कारण कितना आ जाएगा डी वी। अगर मैं देखूँगा कि लेमडा डी एक्स वाई आर, इसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ते जो कि आप सबको मालूम है। तो के लेमडा बाय आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी एक्स, मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टोटल लेंथ जो कि हमें दे देगा 2 पाई आर। सो ये आएगा के लेमडा 2 पाई आर बाय आर, इसको हम क्यू लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। या फिर यहाँ से हम आर से आर को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कि लेमडा इंटू 2 पाई। सो यहाँ पे अगर एक आर्क होता और वो एंगल थीटा सबटेंड करता तो वो आप डायरेक्टली बता सकते हो, वो हो जाएगा के लेमडा थीटा, राइट। चलो आगे अगर हम देखें, अगर सेम ये था एट सेंटर, दूसरा अगर हम देखें एट एक्सियल पोजीशन की अगर हम बात करें, तो ये अपनी एक्सियल पोजीशन हो गई। यहाँ पे अगर हमने ये स्मॉल पार्टिकल लिया वापस डी क्यू अगर मैं ले रहा हूँ तो ये एक्स डिस्टेंस पे जो कि पॉइंट पी है, और ये डिस्टेंस अपना रिंग का रेडियस आर हो गया। सो अगर मैं हर एक पार्टिकल के कारण पोटेंशियल देखूँ, डी वी आ जाएगा के डी क्यू अपॉन नेट डिस्टेंस जो कि है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे के डी क्यू जो है, डी क्यू जो है वो टोटल क्यू हो जाएगा। सो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो कि है वी। सो अगर आपको याद हो इसकी फील्ड की वैल्यू आ रही थी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। बहुत बार क्या होता है कि फील्ड निकालना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट करना टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले वी निकाल लेते हैं और फिर इसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे अगर हम देखें नेट डायरेक्शन सिर्फ यहाँ पे एक्स ही है, ना वाई है ना जेड है, तो ये ऑब्वियस है कि हम डिफरेंशिएट सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। सो अगर मैं डी वी बाय
डी एक्स करूँ और यहाँ पे एक्स कैप या फिर आई कैप लगा लूँ और ये माइनस, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी। तो ट्राई करके देखते हैं। के क्यू ये अपना कांस्टेंट है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर -1/2। ये हो गया अपना पोटेंशियल। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। अभी अगर हम करें dy/dx और आगे माइनस भी लगा ले तो ये हो जाएगा के क्यू जो कि कांस्टेंट है -1/2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर -12 -1 सो -3/2। और चेन रूल के तहत आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। डी ओके सॉरी, ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है अपनी। सो अच्छा, तो ये जो माइनस है ये dy/dx हमने निकाला है, तो इसके आगे हमको ये वाला माइनस लगाना है, राइट। सो फाइनली ये हमें दे देगा E जो कि है के क्यू, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बोला था आर कैप। तो देखो आ गया ये आर कैप इन एक्स कैप, सो सेम ही आ रहा है ये, राइट। तो ये भी एक तरीका हो जाएगा अपना। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एक्सियल पोजीशन में हम देखेंगे। लेट्स सपोज इसका हमें लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। ओके, अगर कभी भी हमें फील्ड पोटेंशियल निकालना है ना, तो यहाँ पे अगर ये लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तब भी सेम ही आंसर आएगा दोनों ही केस में, कि क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और राइट, यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा पार्टिकल लिया, ये इसका चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा dx, अगर ये लेंथ अपनी है x डिस्टेंस, तो ये लैम्डा dx के कारण p पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर, और r कैप में आएगा ये k लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर। ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना डायरेक्टली आंसर आएगा। ये हमने कुछ गलत कर दिया, मतलब इसी से भी आंसर आएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, तो बेटर है अगर हम ओके इसके कारण मैं पोटेंशियल यहाँ पे निकालूँ तो डी वी की वैल्यू आ जाएगी के लैम्डा डी एक्स बाय एक्स, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू इस पॉइंट पे अगर देखें, ये हमें a दिया हुआ है और ये लेंथ l दी हुई है। सो x अपना इनिशियली यहाँ से यहाँ तक का है जो कि है a, और फाइनली यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो ये हो गया a प्लस एल, राइट। सो फाइनली यहाँ पे आंसर अपना आएगा के लैम्डा एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए। तो हमने जो आगे फील्ड से निकाल रहे थे उससे भी आएगा, लेकिन उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क,
सिंपल है। पहले रिंग के कारण एक पॉइंट पे निकालेंगे। ओके, ये हम इसकी एक्सिस पे देख रहे हैं। एलिमेंट्री अगर रिंग हम लेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा टी आर। अगर ये डिस्टेंस को हम x ले ले पॉइंट P, तो टी वी बी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा के लैम्बडा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ का इंटीग्रेशन। इसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर भी दी हुई है। तो यहाँ से अगर डी क्यू निकाले, ये हो जाएगा के 2 पाई आर डी आर, जो कि एरिया हो गया, इंटू सिग्मा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। इंटीग्रेट अगर हम आर की वैल्यू को देखेंगे तो 0 से कैपिटल आर हो जाएगा। के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सो 2 पाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, और ये 0 से आर अंदर रह जाएगा आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हमने टी स्क्वायर ले लिया तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 2r/dr इज इक्वल्स टू 2t dt आएगा। x कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लिमिट्स हो जाएगी अपनी, जब इसके अंदर r की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये सिर्फ x देगा, और फाइनल कैपिटल R रखने पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट आएगा। इधर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर का रूट, मतलब टी से टी कट जाएगा। फाइनली आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो इसी को डिफरेंशिएट करने पे अपने को फील्ड भी मिल जाएगी। लेट्स चेक इट वंस। सो पोटेंशियल अपना आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस का, और एक्स कैप में डायरेक्शन आएगी। सो ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ है तो वो हाफ बाहर आ जाएगा, और -1 करेंगे तो वो माइनस का हाफ बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 2r। ओके, इधर कैपिटल आर आएगा। एक सेकेंड, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2r नहीं 2x आएगा। 2x और इधर कैपिटल R, और इधर आएगा माइनस का 1। फाइनली ये दे देगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखना तो सेम आ रहा है ये, राइट। ओके, ये जो माइनस साइन है वी और आर के रिलेशन में, वी और ई के रिलेशन में, वो क्या सिग्निफाई करती है? ये वाला जो है, इसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे पास हो रही है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वी ए, और वी का जो भी पोटेंशियल होगा वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वी से, ठीक है।
तो ये माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट करती है। और ये आपको मालूम भी होगा कि जो भी चार्ज जो भी फील्ड होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल के साइड फील्ड फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड पास होता है, राइट। आगे अगर हम बढ़े तो आगे है हमारे पास स्फीयर। तो स्फीयर्स अगर याद हो, 4 टाइप के स्फीयर्स होते हैं, कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग होलो और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। लेकिन यहाँ से डायग्राम 2 टाइप के ही बनते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो जिन्होंने आगे के लेक्चर्स देखे उन्हें मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। स्टार्ट हम करते हैं इससे। सो ये हो गया अपना कंडक्टिंग होलो सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग होलो, ये 3 टाइप इसी में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, क्योंकि चार्ज बाहर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ देखें तो ई इन की वैल्यू तो हमेशा 0 ही आती है। ई इन अगर 0 है मतलब कि माइनस डी वी बाय जो डी आर है उसकी वैल्यू 0, मतलब वी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है इनसाइड। अगर वो कांस्टेंट है मतलब जितना सरफेस पे होगा उतना ही पूरे में होगा, राइट। सो अगर वी आर की बात करें सच दैट आर इज़ लेस देन कैपिटल आर, या फिर इक्वल्स टू भी ले लेते तो ये आता है के क्यू बाय आर। लेकिन जैसे ही वी एक्स की बात करें, यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन आर, तो ये आ जाता है के क्यू बाय एक्स। अगर बाहर है कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट ही, तो इसे हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करते हैं और पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू बाय एक्स आता है। यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे, ये बनेगा इनिशियली कांस्टेंट ग्राफ बनेगा और फाइनली ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा, ये एसिम्पटोट बनेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू एक्स है और यहाँ पे आता है के क्यू बाय आर, सच दैट ये अगर एक्स है और ये हो गया वी पोटेंशियल। अगर सॉलिड के कारण देखें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के कारण तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज क्योंकि सरफेस के अंदर है, अगर याद हो, अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें पी पॉइंट पे जो कि इनसाइड है, ई पी की वैल्यू आ रही थी कि हमने निकाला था रो के टर्म्स में, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। रो को अगर हम लिखे कि क्यू, रो को हम अगर लिखे क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब, तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट और इधर हो गया आर, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और ये हो जाएगा के क्यू आर बाय के क्यू आर बाय आर क्यूब, राइट। और डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड्स, तो ई पी की ये थी। अगर यहाँ पे हम देखें डी वी इज इक्वल्स टू डी ई पी डॉट
डी आर का इंटीग्रेशन और आगे माइनस, राइट, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। सो अगर हम देख रहे हैं ये हो जाएगा डेल्टा वी, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और डी आर कैप अपना 1 हो जाएगा, राइट। इनिशियली हमें मालूम है कैपिटल आर का और हमको निकालना है स्मॉल आर का, मतलब कि हमें हमने ये एक पोर्शन लिया है, ये अपना स्मॉल आर है और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू हमने लिखी हुई है, राइट। हमें इस पे मालूम है सरफेस पे आता है के क्यू बाय आर, क्योंकि एक बार सरफेस के ऊपर या सरफेस के बाहर हम देखेंगे तो वो पॉइंट चार्ज ही हमें इसे कंसिडर करना है, तो वो के क्यू बाय आर आएगा, जो मुझे ऑलरेडी पहले लिखवाना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बता दिया, राइट। सो हमें मालूम हम इनिशियली कैपिटल आर पे फाइनली स्मॉल आर पे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी आर माइनस कैपिटल आर, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू बाय आर क्यूब और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2। लाइक लिमिट्स की अगर बात करें तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर का हमें आइडिया है नहीं, राइट। सो ये ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का के क्यू बाय आर क्यूब आर स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 और प्लस का वी आर जो कि के क्यू बाय आर है, वी आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का के क्यू, ओके, माइनस को अगर हम अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं अभी तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 और ये प्लस का के क्यू बाय आर। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले तो ये आर क्यूब और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको अगर हमने अंदर की तरफ ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, जिसको हमने यहाँ पे ले लिया। तो फाइनली ये आंसर आएगा हमारा वी आर का, राइट। अगर यहाँ पे हम ओके माइनस का कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फाइन सही है। अगर यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाए, सो इनिशियली अगर हम देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 डाली तो ये कितना दे रहा है हमें 3 के क्यू बाय आर। सो यहाँ पे ये आ रहा है 3 के क्यू बाय 2r और ये ऐसे जाएगा। ये जो ग्राफ है ये प्रोपोर्शनल टू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और ये जो है वो एक बार हम बाहर चले गए तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल आर ही आएगा, ये r हो गया। सो ये अपना हो जाएगा कैसा हाइपरबोलिक, राइट। ये हो जाएगा r इक्वल्स टू आर, जहाँ पे एक अपना कॉन्क्यूविटी चेंज वाला पॉइंट बनेगा, जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी कहते हैं, और ये हो जाएगा के क्यू बाय आर। सो ये है v वर्सेस स्मॉल आर। तो यहाँ पे सारे ही पार्टिकल्स के हमने पोटेंशियल्स निकाल लिए हैं, लास्ट बट लीस्ट नहीं, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एग्जैक्ट पोटेंशियल्स हम किसके निकाल सकते हैं, जो पार्टिकल इन्फिनिटी पे नहीं है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स है, जैसे कि स्फीयर हो गए, पॉइंट चार्ज हो गया,
या फिर एक रॉड हो गया। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं एक इनफाइनाइट रॉड की बात करूँ, राइट, अगर एक इनफाइनाइट रॉड है मेरा, तो ये तो इनफाइनाइट तक है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनफाइनाइट पे फील्ड ज़ीरो होगी, और फील्ड अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा, राइट। तो वो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल ज़ीरो हम रेफरेंस लेते हैं वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम डिफरेंस ही फाइंड कर सकते हैं। सो ये रॉड हो गया, शीट हो गई, वैसे टाइप के इसके अंदर हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट रॉड। रॉड के अगर फील्ड की बात करें तो ये पहले तो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, राइट। और इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड देखूँ तो ई पी की वैल्यू आएगी 2k लेमडा बाय आर कैप, राइट। लेट सपोज ये पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। दोनों के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो 2k लेमडा बाय आर डॉट डी आर और आगे माइनस। इनिशियली अगर मैं देखूँ तो ये आर पी डिस्टेंस पे है हम, और फाइनली हम आर क्यू डिस्टेंस पे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डी वी का इंटीग्रेशन होगा जो कि डेल्टा वी होगा। यहाँ पे हो जाएगा वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2k लेमडा एल एन आर क्यू माइनस आर पी और आगे नेगेटिव, राइट। अगर वी क्यू की बात करें हम तो फाइनली आ जाएगा वी पी माइनस 2k लेमडा एल एन आर क्यू माइनस आर पी। अगर हमें ये देखना है कि हमने जो ये निकाला ये आंसर सही है या गलत, तो ये ऐसे भी पता चलेगा कि फील्ड जो है वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ जा रही है, राइट। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ जा रही है, मतलब पोटेंशियल पी का ग्रेटर होगा क्यू के कंपेयर में, राइट। अगर यहाँ पे हम देखें ये पोटेंशियल पॉइंट पी का हो गया, फिर माइनस समथिंग आ रहा है। अभी ये माइनस समथिंग जो एल एन के अंदर है वो पॉजिटिव है कि नहीं या फिर नेगेटिव है वो चेक करो। आर क्यू जो कि ग्रेटर वैल्यू है आर पी के कंपेयर में, तो एल एन के अंदर क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो ये हमें पूरा पॉजिटिव देगा। और आगे माइनस है तो ये वी पी में से कुछ ना कुछ घटा रहा है, तब जाके हमें वी क्यू मिल रहा है, ताकि जिसका मीनिंग ये है कि हमारा कैलकुलेशन सही है। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू शीट नाउ। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू an infinite sheet. So let's suppose this is the side view of an infinite sheet. Let's suppose like this is the electric field, which is sigma by 2 epsilon naught. Let's suppose we take one point P over here and Q point over here. We know that VP is always going to be greater than VQ, right? Let's suppose this distance be RP and this distance be RQ. So dV is going to be minus of dE dot dx, right? So it's going to be sigma by 2 epsilon naught into dx minus, as we are moving from Vp to Vq, so over here it's going to be Vq minus Vp, and here it's going to be Rp Rq. Finally Vq is going to be Vp minus of sigma by 2 epsilon naught Rq minus Rp. As Rq is greater than Rp, so this value is going to be positive,
and overall this is going to be negative. And as there is deduction from Vp, so Vq is going to be less than Vp, hence this relation is true. Moving on, we are going to see equipotential surface. So from name only we can judge that surfaces which have equal potential is called equipotential surface. So there are certain conditions, starting with condition 1, which is electric field is always perpendicular to equipotential surface. So why so? Let's suppose we take one equipotential surface which looks somewhat like this. So if we take point P over here and one point Q over here, so potential of Vp should be equals to Vq, right? Now let's suppose we take electric field in this direction. So whenever I am going to take components of this field, one is going to be in this direction and one is going to be in perpendicular direction, right? Now let's take this as angle theta, this as E. So this is going to be E cos theta and this is going to be E sin theta, right? Now because of E sin theta there won't be anything, but due to E cos theta there is going to be potential difference between point P and Q, which is not possible. Hence V cos theta has to be 0, and hence E sin theta should be equals to E, and hence there should be electric field always perpendicular to the surface, or else there is going to be potential difference in the equipotential surface itself. तो वो हटाने के लिए, वो निकालने के लिए, that needs to be 0, and net field is always going to be in perpendicular direction. Now if we see some equipotential surface, so due to this infinite sheet, as field is perpendicular to the sheet, we get equipotential surfaces like this, which is parallel planes, and this is due to infinite sheet. So field is going to be always perpendicular to the every point in the plane itself, right? If we talk about equipotential surface due to point charge, so as we know that field is going to be radially outward in direction, so there are going to be spherical equipotential surface. Let's suppose we take V1 over here and V2 over here, such that V1 is going to be greater than V2, right? And all the E vectors are going to be perpendicular to the equipotential surfaces. So concentric spherical equipotential surfaces, and this is due to point charge. Let's suppose there is this infinite wire, so due to this the field is going to be radially outward in direction, so there are going to be some spherical some cylindrical
equipotential surface is like this, and field is always going to be perpendicular to the surface. Let's suppose we take v1 over for this v1 and for this v2, such that v1 is going to be greater than v2. Coaxial, as axis is equal for all cylindrical surfaces, so coaxial cylindrical equipotential surfaces, and this is due to infinite long conductor, right? So now we are at the end of this video. Last we are going to see closest distance of approach. So what does this mean? So like there are 3 cases in this only. So if there is going to be any question, it is going to be based on any of the one of the cases, right? So case 1, let's suppose there is this charge q1 which is fixed, and there is one q2 charge over here, and it is projected with velocity v naught in the same direction, in the line joining direction of the both the charges. So ये कितना q2 जो है वो कितना नज़दीक आएगा, that we have to find out. Like most probably they are going to give this q2 charge at infinite distance, but let's suppose we considering at r naught distance for now, so it's going to be more tough right now, right? So what we can do, as this charge is fixed, right, we can conserve the energy, as there is not any kind of this resistive force, we can conserve energy, right? Initially we have given this velocity v naught. Finally it's going to stop when this kinetic energy is converted into all potential energy. So if we talk about potential energy, so we're going to just conserve energy. If we're going to write potential energy initially, it's going to be k q1 q2 by r naught, and final potential energy is going to be k q1 q2 by r minimum. If r naught is infinity, this value is going to get 0. If we're going to write total energy initially, it's going to be k q1 q2 by r naught plus half mv naught square, and total energy second में is going to be pe2 only, because kinetic energy वहाँ पे 0 हो गई. इसके बाद जो चार्ज q2 है वो उल्टी डायरेक्शन में वापस जाएगा, right? So this is, and kinetic energy 2 is 0. Equating both these energies, we're going to get r minimum, right? केस 2 में क्या है, so this q1 charge is not fixed now, it is just in rest. वापस अगर एक q2 चार्ज को इसकी तरफ प्रोजेक्ट करें विथ वेलोसिटी v, और दोनों ही मूव हो सकते हैं चार्जेस, तो r मिनिमम अगर निकालना है कैसे निकालेंगे, राइट? Let's suppose right now this is r naught, right? Okay, अभी इनिशियली q1 रेस्ट पे है, लेकिन q2 को हमने v naught वेलोसिटी दी हुई है,
अभी यहाँ पे अगर Q1 मूव हो सकता है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इस वाले केस में देखेंगे तो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो एक हिंज फोर्स एक्सटर्नल लग रहा था, राइट। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा तो मोमेंटम अपना कंजर्व रहेगा, और दूसरा एनर्जी तो कंजर्व होती ही है, राइट, क्योंकि कोई ड्रैग फोर्स नहीं है इसके अंदर। अगर एनर्जी कंजर्व होगी तो पहले तो हम लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R0, एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी हाफ m v0 स्क्वायर। ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग बोथ सेम आर हैविंग सेम मास, ठीक है। अलग मास होगा तब भी आप निकाल सकते हो, ईजी है। अगर दूसरे वाले केस में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो Pe2 है वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम, जबकि काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, m v0 था। फाइनली अगर देखेंगे तो 2m v डैश होगा। जब दोनों की वेलोसिटी मैंने क्यों सेम ले ली, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। ये हमने रिलेटिव मोशन में देख सकते हैं, रिलेटिव मोशन से देख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की अगर हम देखें तो वो ज़ीरो होनी चाहिए, तब जाके मिनिमम डिस्टेंस आता है दोनों के बीच में। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मिनिमम चाहिए मतलब दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ जाएगी v0/2, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है ये हो जाएगा हाफ इंटू 2m, क्योंकि दोनों ही मास सेम वेलोसिटी से जा रहे, v0/2 का स्क्वायर। सो ये दे देगा हाफ m v0 स्क्वायर बाय 2 विच इज़ m v0 स्क्वायर बाय 4, राइट। सो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमने कहाँ पे निकाली है, यहाँ पे निकाली है। तो ये टोटल एनर्जी हो गई इनिशियली, और ये फाइनल टोटल एनर्जी हो गई। दोनों को सॉल्व करने पे आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अगर ये R0 इन्फिनिटी होता तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। अच्छा, अगर मास अलग अलग होता तब भी हमें v डैश की वैल्यू सेम करनी थी, तो ये 2 की जगह यहाँ पे कुछ और आ जाता, सपोज 3 आ जाता, 4 आ जाता, ठीक है, तब भी सॉल्व हो जाता। लेट सपोज लास्ट वाला केस है, इसके अंदर जो Q2 है वो तो वापस फिक्स्ड है, लेकिन अब पार्टिकल हम Q1 जो है उसको लाइन जॉइनिंग डिस्टेंस पे, लाइन जॉइनिंग बोथ द पार्टिकल पे नहीं प्रोजेक्ट कर रहे। लेट सपोज यहाँ से कोई d डिस्टेंस ऊपर हम v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या कंजर्व होगा, राइट। एक तो एनर्जी तो होगी अगेन, दूसरा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जैसे जैसे ये पार्टिकल नज़दीक आएगा ऐसे ऐसे ये अपना पाथ कुछ ऐसे चेंज करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमेशा फोर्स जो है वो ऐसे ही लगेंगे, अगर इस पॉइंट पे आया तो ऐसे और ऐसे। सो फोर्स तो हमेशा इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगर फोर्स हमेशा इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो मैं क्या इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकता, कर सकते हैं, राइट। अच्छा, सो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। लेट सपोज ये अगर आर मिनिमम है तो जब भी आर मिनिमम आएगा हमारा जो वी डैश है इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आर मिनिमम के परपेंडिकुलर ही होगी, राइट। सो ये अपना आर मिनिमम हो गया। तो पहले अगर देखें ये डिस्टेंस हमको कुछ दिया होगा R1 करके या फिर इनफाइनाइट, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी हमें देगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा
के Q1 Q2 बाय R1 प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ Q1 Q2 बाय R मिनिमम और प्लस हो जाएगा हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन निकलेगी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, जो कि हो जाएगा वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट है तो डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मत मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है उसका साइन थीटा भी हमें लेना पड़ता है। तो आर का अगर आप साइन थीटा लोगे तो वो डी ही मिलेगा। सो वी नॉट एम इंटू वी नॉट इंटू डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी डैश इंटू आर मिनिमम। यहाँ पे क्यों हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आर मिनिमम और वी डैश तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई कर्व है उसकी टेंजेंट और उसका नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और नॉर्मल तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन जो कर्व होता है वो जब भी परपेंडिकुलर होता है उस डिस्टेंस पे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस हमेशा अगर हमें निकालना है तो वो परपेंडिकुलर होता है कर्व के, राइट। सो ये हो जाएगा यहाँ से वी नॉट इंटू डी इज इक्वल्स टू वी डैश इंटू आर मिनिमम आ जाएगा। सो अपने पास यहाँ पे वेरिएबल्स इतना है, एक वी डैश है वो हो गया और दूसरा आर मिनिमम हो गया। सो दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल, एक इक्वेशन ये और ये इक्वल करने पे मिलेगी और दूसरी इससे, राइट। ये सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा। इसके काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, फाइन।